مسودہ لاتی ہے. پیپلز پارٹی اور GUI کے درمیان بھی بات ہوئی ہے, وہ بھی ایک مسودہ بنا رہے ہیں ہم بھی, اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. PTI بھی ایک مسودہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے, تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے, بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے. مولانا صاحب, یہ جو تاثر تھا مسودے کے حوالے سے, آپ نے فرمایا کہ جو حکومت کا مسودہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اتفاق رائے سے. یہ حکومت کا جو مسودہ ہے یہ واقعی حکومت کا ہی مسودہ ہوگا؟ کیا مطلب آپ کا؟ مسودہ حکومت کا ہی ہوگا. تو ظاہر ہے ہم تو حکومت کا ہی, ہمیں تو حکومت کے ہاتھ سے ملتا ہے تو ہم حکومت کا ہی کہیں گے. اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو بتا دیں. بھائی ہمارے پاس تو حکومت کی طرف سے آتا ہے, تو ہم تو حکومت کا ہی کہاں سمجھیں گے. بالکل مسودات ہوئے, اور اسی کو دیکھ کر تو ہم نے مسترد کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت جو بنیادی حقوق آپ دیتے ہیں قوم کو, عام آدمی کو, اس میں کچھ استثنائیات ہیں جس میں ملٹری کے حوالے سے ہیں, بہت مختصر سے. تو اس چھوٹے سے استثناء کو وسعت دی گئی, اور جو بنیادی حقوق کا دائرہ ہے اسے تنگ کر دیا گیا. اور اس کے آگے کورٹ کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لانا کہ کورٹ کے نظام کو خراب کرنے کا باعث تو بن رہی تھی, لیکن اس میں اصلاح کا سبب نہیں بن رہا تھا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ خود مختار رہے, اس کی خود مختاری پر اور اس کی بالادستی اور سپرمیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور ترمیم بھی لائیں تو ایسی ترمیم کہ جس سے پبلک کو ریلیف ملے, جمہوریت مستحکم ہو, اور ہر پارٹی کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لانے کی صلاحیت ہو. لیکن یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب کی ہے کہ ہم اس کو عوام کے مینڈیٹ نہیں سمجھتے. پارلیمنٹ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو ایشو تھے, جو امن و امان کا مسئلہ ہے, جو صوبے کے حقوق کے جو مسئلے ہیں, اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کتنے سنجیدہ ہے, اور جمعیت علماء اسلام کے کیا تھا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہمیں اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے. یعنی اس وقت تک میرے پاس جنوبی وزیرستان, چاہے وزیر قبیلے سے تعلق ہو, چاہے مسعود قبیلے سے تعلق ہو, ان کے وفود میرے پاس آئے ہیں. شمالی وزیرستان کے عثمانزی قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. کرم ایجنسی کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. اب بھی وہاں پر جنگ شروع ہے, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ریاست خاموش ہے. یہ ہمارے خیبر ایجنسی کے کوکی خیل قبیلے کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس, افریدی لوگ. تو کوئی ایسا ایجنسی نہیں ہے کہ جن کے وفود کم از کم میرے پاس براہ راست نہ آئے ہوں. اور یہ سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. کسی کو گھروں کے معاوضے نہیں مل رہے, سو غریب لوگ ہیں, گھر تباہ ہو گئے ان کے, دوبارہ بنانے کے قابل نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ اتنے طویل اپنے ملک میں ہجرت کا دور مکمل کر کے بھی ابھی گھروں کو واپس نہیں جا سکتے, اور فوج ان کو واپس نہیں جانے دے رہی. تو اس ساری صورتحال میں ہمارے قبائل جو ہیں میرے خیال میں انضمام سے پہلے کے حالت میں اچھے تھے, انضمام کے بعد میں جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں جی, اور زیادہ قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہیں. اب نہ فاٹا رہا نہ سیٹل رہا, اس بیچ میں کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے, مظلوم. اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے. ہمارے ہاں بھی لاپتہ لوگ ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں. اسی طرح لاپتہ لوگ بلوچستان میں ہیں, وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہیں, اور یہی ان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے, مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں, کنٹرول ان کا ہے, اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے. ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے, پرائرٹی کو طے کرنا چاہیے. ترجیحات کیا ہیں ہماری, اس پر حکومت نہیں سوچ رہی. آج پشاور میں ایک سیمینار ہوا ہے فاٹا مرجر کے حوالے سے اور قبائل کے مسائل کے حوالے سے, اور سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے فاٹا مرجر کا فیصلہ کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, وہ بھی اس میں شریک تھے, اور اس وقت کے چیف سیکریٹری اور اس وقت کے جتنے بھی بیروکریٹس تھے وہ آج سارے مل بیٹھے تھے, اور انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ فاٹا کے عوام کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں وہ پورے کیے جائیں. یا آئینی ترمیم میں قبائلی علاقوں کے مسائل اور ریسورسز اور یہ جو مرجر کے ایشوز ہے, کیا اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟
खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे। इस मौजू पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और वो सारा पस मंज़र उनको मालूम था। खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे उस वक्त जब ये तरमीम अभी नहीं हुई थी, तो 25 मुतालबात में से 4 मुतालबात जो हमारे थे जिस पर हमें इख्तिलाफ था, उससे वो विड्रा हो गए थे। विड्रा होने के बाद कहाँ से हुक्म आया? ज़ाहिर है कि मुझे मालूम है कि अमरीकी अफसर कौन था जो आया और उसने कहा कि फाटा मर्जर इज़ मस्ट। ये अल्फाज वो हैं जो मेरे सामने कहे गए हैं। फिर जनाब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, नवीद मुख्तार साहब जनरल वो ISI की चीफ थे। पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि आप बेवक्त फ़ैसला कर रहे हैं। अभी फाटा मर्जर जो है उसके लिए फाटा का हालात मुवाफ़िक नहीं हैं। हमने बहुत तजवीज़ें दी लेकिन वो बज़िद थे कि जी अमेरिका का दबाव है, जी अमेरिका का दबाव है। तो अगर हम मुल्क के अंदर ख़ुद मुख्तार नहीं हैं और हमने मुल्क के अंदर के फ़ैसले और तब्दीलियाँ अमेरिका के दबाव पर लानी हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा सवाल है हमारे मुल्क के लिए। फाटा के अवाम के साथ इंज़िमाम की सूरत में जो जुल्म हुआ है, आज तक उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इस वक्त तक उनको 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 800 अरब, और अभी 100 अरब मुश्किल से उनको पूरे हुए हैं। 8 साल के बाद हर साल उनको 100 अरब मिलने थे। तो इस फाटा के अवाम ने क्या जुर्म किया है? फाटा के अवाम ने तो मुल्क का दिफा किया है। वो आपका एक सरहदी दिफा का किरदार अदा करते रहे हैं। इसलिए इन इज्तिमाआत से और सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। अपनी गलती का एतराफ़ करें, कहें कि हमने फाटा के अवाम के साथ जुल्म किया था, हमने जबर किया था। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी स्टेट को भी चैलेंज करता हूँ, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता हूँ कि फिर फाटा के अंदर लाएँ रेफरेंडम को और आवाम से पूछे कि अवाम क्या चाहते हैं। ज़बरदस्ती हम दुनिया में कौमों पे जबर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो फैसले हुए हैं हज़रत पहले सोचना चाहिए। अब बाद अज़ मर्ग वावेलों की क्या ज़रूरत है? सर ये कल अली अमीन मंडापुर ने एक बयान जारी किया था, बाकायदा उसके खिलाफ का ऐलान किया और ये कहा है कि जितने भी इदारे हैं वो दरमियान में ना आए। अब कोई अगर एक गोली मारेंगे तो वो 10 गोली खाएंगे। आज हम इनकलाब कर रहे हैं, बाकायदा इनकलाब का ऐलान किया कि मैं इनकलाब। तो आप एक सीनियर सियासतदान, आप इस ऐलान को किस नज़र से कहते? मेरे ख्याल में मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूँ। मैं अपनी तौहीन समझता हूँ ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसी एक बड़बोला है। तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियाँ मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है। जिस सूबे में होता है, आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और वहाँ गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है, तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए? पार्टी है ना, पार्टी को अपना हक़ हासिल है कि वो जलसे में भी जाए, वो एहतजाज भी करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए, जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है और इस किस्म की मखलूक से हमारा वास्ता है। तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? मौलाना साहब, इस वक्त जो 2 सूबों में एक जंगी सूरत नजर आई, एक वज़ीर आला जाता है दूसरे सूबे में, वहाँ से रोका जाता है, शेलिंग होती है, तो 2 सूबों को लड़ाई की तरफ धकेलने का एक अमल है, उसको आप किस तरह देखते हैं और मशवरा देंगे, तनकीद करेंगे क्या? भाई सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएँ जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज़ होकर
मेरे ख्याल में ये उसके शाय निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लब लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं कि पार्लियामेंट अवामी नहीं है और आपका भी हुकूमत से कुछ इख्तलाफात हैं, तो क्या आप अपने पार्टी के ज़रिए या अपने तौर पर कुछ इख्तलाफात या कुछ एहतजाज करने की तरफ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ, तो पूरे मुल्क पे जलसे का हमारे से बड़े जलसे किसने किए हैं, हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं। बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख़ में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, पूरे लाहौर की तारीख़ में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज़ के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ, और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। मौलाना साहब, ये कानून साजी के हवाले से आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी जिस पर आप एग्री हो, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। मैंने असम्बली में बात की है, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना, कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, उसके बाद फिर इस बात क्या पकाना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हम आखिरी बार IMF के पास जा रहे हैं, क्या वाकई आखिरी बार जा रहे हैं IMF के पास? हज़रत, आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है। इस किस्म की बात सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसी ने हमें ग़ुलाम बना रखा है माशी तौर पर। आती है मरकज़ियत में हुकूमत आती है आप लोगों की, तो क्या IMF से फिर भी बात होगी उस हुकूमत की? मैं कल की बात आज नहीं बता सकता कि क्या हमें जो सूरत हाल, हर चीज़ में आपकी पॉलिसियाँ मैटर करती हैं। पॉलिसियाँ तदरीजी तौर पर आपको मुश्किल से निकालती हैं। ये नहीं कि आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में तालीम मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में सेहत जो है मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में आप IMF से, हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है। हमने जिस तरह अपने सूबे में प्राइमरी से शुरू किया और FA FSC तक किताबें मुफ्त मुहैया के लोगों को, हमने एक ज़िले से शुरू किया और 12 अजला में A लेवल के हॉस्पिटल हमने बनाए थे। हमने तालीम में कितनी तरक्की की और कहाँ तक हम पहुँचे, ये सारी चीज़ें तदरीजी तौर पर होती हैं, बशर्ते कि आपकी पॉलिसी तो हो। तो जब हमारी पॉलिसी IMF के निजात हमने बनाए थे, हमने तालीम में कितनी तरक्की की और कहाँ तक हम पहुँचे, ये सारी चीज़ें तदरीजी तौर पर होती हैं, बशर्ते कि आपकी पॉलिसी तो हो। तो जब हमारी पॉलिसी IMF के निजात की होगी तो तदरीजी तौर पर यकीनन हम उनसे आज़ादी हासिल करने की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू मुनासिब थी, वो मुनासिब गुफ्तगू थी। मौलाना साहब, एक तो उम्मत मुस्लिमा नफाक का शिकार है, और दूसरा हमारी रियासत और हमारी हुकूमत की इख्तियार वो कुछ और है, और हमारी सियासी जमातों की तरजीहात भी कुछ और है। ये जो हमारा सूबा फाटा मर्जर के बाद बिल्कुल बराह रास्त लगा है पाकिस्तान के साथ, आप तो पाकिस्तान गए, अपने वक्त के साथ गए, मौजूदा दिनों में कोई ऐसी तजवीज़ है कि सियासी जमातें उसमें किरदार अदा करें या आप जैसी शख्सियात उसमें किरदार अदा करें, कम अज़ कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला दुरुस्त सिमत में चलना शुरू करें? फिदा भाई, मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैंने एक हफ़्ता वहाँ गुजारा है, मैंने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते निकाले हैं, मैंने मुसल्लह गिरोहों का हल भी निकाला है, इनको रिपोर्ट किया है, इन्होंने अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं उसको आगे बढ़ा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमारे साथ जो हुआ, जिन्होंने स्टेट के लिए इतना कुछ किया, उनके साथ जो हुआ इस सूबे में और बलूचिस्तान में किस कीमत पर हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतनी भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे, हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे, और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतनी भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं,
ہم باقاعدہ میدان میں ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا انداز بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جمہوری انداز ہے، سیاسی انداز ہے۔ ہم ایسے ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ سوال سارے ان سے ہیں، اسٹیٹ سے ہیں، کہ جس دہشت گردی کے خلاف آپ 2010 سے لڑ رہے ہیں، سوات سے لے کر پورے پختونخوا کو آپ نے بے گھر کر دیا، ہماری عزتیں گھروں سے نکل گئیں، در بدر ہو گئیں، آج تک مہاجر ہیں اپنے ملک کے اندر، اور آج اس سے کئی گنا زیادہ مسلح گروہ اس وقت ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، ٹانک میں، بنوں میں، وزیرستان میں اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو تھانے بند ہو جاتے ہیں اور سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں، دیہاتیں ان کے حوالے ہوتی ہیں۔ اب اس حوالے سے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اور کیسے ہمارے حالات گزر رہے ہیں، ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں نا، جو لوگ بھگت رہے ہیں۔ لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی تو شاید ان کا احساس نہ کر سکے، وہ تو ابھی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، لیکن ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان کو شاید وہ ادراک نہیں کر پا رہے۔ صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اس لیے ہم خود جو ہے وہ پہل کریں گے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ جو بیانات آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے، تو امیر مقام نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے، اس کی حمایت کریں گے آپ؟ ابھی تو ہم گورنر راج کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور اگر امیر مقام جانا چاہتے ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ نہ مرکز میں عوام کی حکومت ہے نہ صوبے میں عوام کی حکومت ہے، مینڈیٹ دونوں جو ہے نا وہ جعلی قسم کے ہیں۔